ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਆਡ ਦਾਮ ਕੋਸ਼ਿ ਕਰੋ, ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਨਾ। ਬਨਨਾ ਤਨਨਾ ਤਿਆਗ ਕੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ। ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜੁਲਾਹਰਾ, ਭਇਓ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਕਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ, ਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਸੈਨ ਨਾਈ ਬੁੱਧ ਕਾਰਿਆ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ। ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਭਗਤਾ ਮਹਿ ਗਾਨਿਆ। ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਨ ਕੈ ਜਾਟਰੋ, ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ। ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆ, ਧੰਨਾ ਵਡ ਭਾਗਾ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਨ, ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਨ, ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਪਿਆਰ ਸ਼ਾਦਾਰ ਤਾਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਯਹ ਰਾਜ ਹੂਰ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਰ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸਵਰੂਪ, ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਸਾਜੇ ਨਿਵਾਜੇ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸੈਣ ਜੀ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ,
ਉੱਥੇ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੋਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾਸ ਭਰੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਪਿੱਛੇ ਵੀਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 9, 9:30 ਵਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਇਓ, ਆਪਾਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਾਗਣਾ ਜਾਗਣ ਲੀਕਾ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮਹਿ ਜਾਗਣਾ। ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 3-3 ਦਿਨ ਜਾਗ ਲਈਏ, ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਫਾਲਤੂ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਲਾਹੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣੀਦੇ ਨਾ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਬਿਰਤੀ ਕੱਚੀ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮੀਠਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਿੜਕ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਿੜਕ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਵਿਗਾੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ
ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਲਊਗਾ, ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਲਸ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਆਖੂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਸੌਣਾ ਹੈ, ਥੱਕੇ ਪਏ। ਪਰ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਅੱਕਦਾ ਥੱਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕਉ ਊਠ ਖਲੋਇਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਬੇਲਾ ਪੈ ਪੈਸੇ। ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉੱਠਦਾ, ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਰ ਸੁਖ ਬਿਸਤਰਾ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਾ ਬਚਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਹੇ ਕਉ ਤੂੰ ਢੀਲਾ ਢੀਲਾ, ਟੋਟੇ ਕਉ ਬੇਗ ਧਾਇਆ। ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਲਾਹਾ ਮਿਲਣਾ ਉਧਰੋਂ ਤੂੰ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਤੂੰ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਹਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਸਾਡਾ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਮਰ ਸੋਈ ਵਿੱਚ ਲੇਖੇ ਦੇ, ਜੋ ਯਾਦ ਸਾਈਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੈ ਪੈਂਦੀ ਮੁਜਰੈ। ਉਮਰਾਂ ਉਹੀ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਉਮਰਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ, ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਗਰ ਆਇਆ ਤੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆਸਣ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਆਸਣ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਮਨਸਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂ। ਉਹ ਨੇੜੇ ਘਰ ਬਣਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਵੱਜ ਗਏ। ਕਈ ਥਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸਥਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆਸਣ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਸੀ, ਸੋ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਬਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਮੁਰਦਾ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਬਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਪੂਜਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਅਟਕ ਗਿਆ, ਰੁਕ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪੜ੍ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ ਦਫਨਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਮਰ ਬੜੀ ਘੱਟ ਲਿਖੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 10 ਦਿਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਛ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਖੇਡ ਵਰਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲੇ, ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 2 ਕਬਰਸਤਾਨ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਣ, ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਗਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੋ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਬਰਸਤਾਨ ਕਿੰਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਬਰਸਤਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ,
मरण वालियां दा उपर नाम लिखिया होया है, उम्र लिखी हुई है, पर मैं पढ़ के हैरान होया कि किसी की 2 साल 6 महीने 2 महीने 10 दिन इस तरह लिखी हुई उम्र। कि तुहाडे पिंड विच कोई बजुर्ग चढ़ाई नहीं करता? तो वो बजुर्ग कहन लगे रब के प्यारियों नहीं, ऐसा नहीं, बजुर्ग भी इत्थे चढ़ाई करते हैं, ये तो खुदा की मौज है कि कदों उन्हें लैके जाना, किहड़ी उम्र में लैके जाना है। पर जिहड़ी उम्र तुसीं रब के प्यारियों पढ़ के आए हो ना, ये केवल शरीर की उम्र नहीं है। आखिया शरीर की उम्र नहीं तो फिर किहड़ी उम्र है? कहने लगे भी साडे पिंड का एक नियम है कि इत्थे जिहड़ा भी रब की इबादत करता है, बंदगी करता है, वो जिन्ना समा बंदगी करता है वो लिख लेंदा है कि मैं इन्ना समा बंदगी की है। जदों वो पुरानी चढ़ाई कर दिंदा है तो उसकी लिखत मुताबक असीं हिसाब किताब ला करके उसकी कबर के उपर लिख दिंदे हैं जिन्ना चिर इन्हें बंदगी की है उही उम्र है सही, बाकी तो व्यर्थ ही गई। गज करके आखो सतनाम। क्योंकि ये सारियां क्यों सुनाई सानू समझ आ जाए कि उम्र उही लेखे विच है जिहड़ी मालक की याद विच गुजरी, बाकी का कोई लाभ नहीं। जिहो जे पशु जियों के चले गए उहो जे आपां चले गए, कोई बहुता लाभ नहीं। सो इस करके गुरमुखों ये जिहड़ी अपनी उम्र है जो आपां हुण बैठे हैं ना गुरु की गोद अंदर, सानू नहीं साडे वल्लों 4 बैठो 10 बैठो 1000 बैठो असीं तो सुना के चले जाते, असीं अपनी सेवा निभा जानी, तुहानू भी लाभ होवे कि तुसीं आए जे गुरु कोल कुछ लैके जाओ। इस करके एक एक सवास साडा लेखे विच लग रहा है। चलो मैं बहुते विस्तार वाल ना जावां, विषय वाल आवां। प्रभु शक्ति ते गुरु शक्ति बारे आपां जानन दा यतन करना है। गुरबाणी दे विचों भी प्रमाण लवांगे। पहला तो आपां सब को प्रमाण लैंदे हां भगत सैन जी दा। तुसीं सुनिया भी होया, मैं केवल रिपीट करना 2-4 मिनट कि प्रभु ने शक्ति विखाई कि नहीं विखाई, ध्यान देना। सो गुरु प्यारेलाल भाई साहब भाई गुरदास जी ने भगत सैन के जीवन बारे एक पौड़ी लिखी है जिहदे विच उन्होंने प्रभु शक्ति का जिक्र किया कि प्रभु जी ने परमेश्वर ने किवें अपने प्यारे भगत वास्ते शक्ति दिखाई है। अज आप कहते हैं मन भी लेने भी तो सानू कोई विद्वान कहता शक्ति होंदी नहीं, फिर उस पौड़ी का की करोगे? कट दोगे। जिहदे विच लिखिया होया है कि रब ने भगत सैन वास्ते शक्ति दिखाई। भगत सैन जी सो राजा राम जे रीवा रियासत के राजे सन, उन्होंने कोल नौकरी करिया करते सन, मुट्ठी चापी भी उन्होंने करिया करते सन, जो उन्होंने किरत सी। ते गुरु प्यारेलाल एक दिन की होया, भाई गुरदास जी लिखते ने कि भगत सैन की भगत पता किवें बने। भाई गुरदास जी का वचन है, सुन प्रताप कबीर दा दूजा सिख हुआ सैन नाई। 15 भगतों की बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। उन्होंने भगत सैन भी है, कबीर भी है। उन्होंने भगत रामानंद जी का भी जिक्र आता। भगत रामानंद जी का भी एको ही शब्द है बाणी में, भगत सैन जी का भी एको ही शब्द है। ध्यान दे। सो गुरु प्यारेलाल भगत रामानंद जी कबीर साहब के भी गुरु सन ते भगत सैन जी के भी गुरु सन। ध्यान दे। उत्थे जिक्र किया है कि सुन प्रताप कबीर का दूजा सिख हुआ सैन नाई। कहते भगत कबीर जी का प्रताप सुन करके भगत रामानंद जी का सेवक दूजा सिख बनया है भगत सैन। वो की किरत करता है, की कर्म होता। तो भाई गुरदास जी लिखते हैं, प्रेम भगत राती करे भलका राज द्वारा जाए। इसका मतलब भगत सैन सौंदा घट है, रात को प्रेमा भगती करता। भाई साहब जी कह रहे हैं अज वो स्थान पर बैठे हैं आपां नूं भी रात जाग करके प्रेमा भगती करनी चाहिए। उन्होंने जीवन में तो यह सिक्ख्या लैनी चाहिए। प्रेम भगत राती करे, रात जाग करके प्रेम में जुड़ करके रब की भगती करते हैं। इत्थे ध्यान देना शब्द बड़ा बुझा है, समझने वाला है कि जिन्ना चਿਰ साडे कोल प्रेम नहीं, साडे कीते हुए कर्म लेखे विच नहीं बैठे। असीं 2 कर्म कर लैने। किहड़े कर्म? मैं तुहानूं सुनाई जा रहा, तुसीं सुनी जा रहे। ये 2 कर्म आपां करी जा रहे।
ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾ ਵੀ ਹੈ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਂ। ਗਾ ਵੀ ਹੈ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੋ ਕਰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ। ਗਾ ਵੀ ਹੈ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਭਾਉ। ਭਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂਗੇ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਾ ਵੀ ਹੈ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਭਾਉ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖ ਕਰਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ, ਸੁੱਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਪਰ ਹਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਛੱਡਣਾ। ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੱਜ ਕਰਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਸੁਣ ਲਈਏ ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਘੋਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪਵੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਨਹੀਂ। ਬਚਨ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਸੁਣ ਲਈਏ ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣੇ ਆ ਪੂਰੇ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗਾਵੇਂਗਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਪੱਕਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਗਾਓ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਸੁਣੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ, ਭਾਵ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇਰੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਭਾਉ ਤਿਨਾ ਮਨ ਭਾਉ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਭਾਉ ਤੇ ਭਾਉ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਭਾਉ ਤੇ ਭਾਉ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਨਾ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਭਾਉ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕੰਨਾ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਭਾਉ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਵੱਖਰਾ। ਭਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਡਰ ਤੇ ਭਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰੇਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ ਭੈ ਅਦਬ ਨ ਬਾਣੀ ਧਾਰਾ, ਜਨ ਹੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੈ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਂ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਰਾਤੀ ਕਰੈ, ਭਲਕਾ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਜਾਏ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਏ ਸੰਤ ਪਰਾਉਣੇ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਆ ਰੈਣ ਸਜਾਏ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਮੰਨਾਂਗੇ? ਬਸ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਸ। ਆਏ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ, ਸੰਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਏ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਆ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ। ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਸਬਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਰੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਭਗਤ ਸੈਣ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ।
आए संत बराहुणे कीर्तन हुआ रैन सबाई छड़ ना सकै संत जन राज द्वार ना सेवक माई। कहते इन्ना प्यार सी भगत सैन जी का रब के प्यारिਆਂ नाल, उन्हां दी संगत नहीं छड़ सकिया, राज द्वार जाना छड्डता, नौकरी ते नहीं गया। अगले दिन जाना सी, तड़के उठ करके राजी की मुट्ठी चापी करनी सी, मालिश करनी सी, जिहड़ी किरत सी। कहते ने उस काम वास्ते पर संतां दी संगत नहीं छड्डी ते हुण आपां छड्डी जाने। चलो ठीक है, हुण दिसदा सानूं नकली बहुत पैदा हो गए, ये तो असीं कह सकते भी नकलियां तो बचो, पर ये नहीं कह सकते भी है ही कोई नहीं। ये ध्यान दिया करो, नकलियां तो सचेत करना साडा फर्ज है। सो छड़ ना सकै संत जन राज द्वार ना सेवक माई। रब के प्यारिਆਂ ਨੂੰ छड़ नहीं सकते, इन्ना प्रेम है भगत सैन जी का। कहते राज द्वार गए नहीं सेवा करने वास्ते, नौकरी ते गए नहीं, रब ने फिर की शक्ति दिखाई। हुण ध्यान दो, प्रभु शक्ति की गल करदा, फिर रब ने सोचा कि मेरा प्यारा बंदगी कर रहा है, ये चंगा कर्म कर रहा है, माड़ा तो नहीं कर रहा, सारी रात कीर्तन करता पाया है, रब के प्यारिਆਂ की संगत बैठा है। रब ने की किया, रब भगत सैन का रूप धार करके नौकरी करके चला गया। उन्हें शक्ति है, ध्यान दिओ, तुसीं पढ़ोगे तो तुहानूं याद होगी, फिर किसी ने सवाल करोगे भी इसका अर्थ की। भाई गुरदास जी की पंक्ति तुहानूं सुना देवां। भाई गुरदास जी अगे लिखते हैं, सैन रूप हर जाए कै आया राणे नोरी जाई। कहते भगत सैन का रूप धार करके रब गया तो राजे की जाके मालिश की, जाके मुट्ठी चापी की, राजे को खुश करके आया। जिहड़ी किरत करते सी भगत सैन जी, उही किरत करके आए। हुण इस गल का भगत सैन को नहीं पता कि मेरी थां ते मेरा रब गया है। भगत सैन तो अपनी मौज में संतां की संगत में बैठ करके कीर्तन कर रहा है। तो सैन रूप हर जाएगा आया राणे नोरी जाई। अगला वचन की है, संत जना नूं विदा कर राज द्वार गया शरमाई। कहते हुण अगला दिन चढ़िया तो रब के प्यारिਆਂ नूं विदा करके भगत सैन जी जदों गए है तो शर्मा के गए भी अज मैं नौकरी ते नहीं गया, राजा मैनूं गुस्से होवेगा, हुंदा ही है। फिर राजे ने आने पूछना भी तू नौकरी पर क्यों नहीं आया, ये शर्मा करके गए ने। हुण भगत सैन नूं नहीं पता कि रब मेरी थां ते ड्यूटी लाया, पर वो अपने हिसाब नाल जानते हैं कि मैं गया नहीं गा, इस करके शर्मा करके गए ने। संत जिन्हां नूं विदा कर राज द्वार गया शरमाई, के दूरों राजे सद कै गलहों कवाए खोल पैनाई। भाई गुरदास जी कहते जो गए ना भगत सैन जी राजे कोल, राजा उठ के खड़ा हो गया, दूरों ही भगत सैन को सद के कोल अते अपने गल वाली पोशाक जी ला करके ना भगत सैन के गल पा दी, भगत सैन के गल में पा दी। अगला वचन कीता, वस कीता हूँ तुद अज बोलै राजा सुनै लुकाई। राजा ये बोलता पाया कि भगत सैन नूं कि अज तू मेरी इहो जी मालिश कीती है ना, अज इन्ना खुश कर दिता है, इहो जी मालिश तू अगे कभी कीती नहीं। ध्यान देना फर्क होगा ना, जो परमेश्वर आया है, परमेश्वर के तो जिथे हथ लग गए उत्थे ही दुख कटे जाने, उहो जी मालिश तो कोई भी नहीं कर सकता। उस वेले सैन ने सोचा है ये शायद मैंने मखौल कर रहा है। कई बार किसी का आप किसी की बेइज्जती करनी वो मखौल करके करी जी गल, कई बार ये तरीका भी होता है, पहला भी अगले नाल सरोपा अगले की बेइज्जती कर देते। सोचा कि शायद मैनू कितने मखौल तो नहीं कर रहा राजा, तू मैनू बड़ा खुश किया है, तू तो बड़ी सोहनी मेरी मालिश की है। तो भगत सैन कहने लगा भी राजा मैं तो आया ही नहीं, मैं तो कल रात संतां की संगत में रहा है, मैं तो आया ही नहीं गा। हुण राजा कित्थों मन्ने जिन्हें दर्शन किए सैन के रूप में रब के, उन्होंने नहीं पता भी रब आया, पर उन्हें सैन के दर्शन किए ने। राजा कहने लगा नहीं तू झूठ बोल रहा है, तू आया है कि मेरी मालिश करके गया है। कहते ने उस वेले भगत सैन ने समझ लिया कि मेरी थां ते हुण मेरा मालिक आया है। उस वेले आख्या राजन हुण तेरी ड्यूटी नहीं कर रहा। राजे ने बथेरा जोर लाया, आखिर तू भावें मेरी मालिश ना कर, ड्यूटी ना कर, पर जो तेन चाहिए मैं देवांगा। आख्या नहीं
मैं तेरा मंगता भी नहीं बनना, जेड़ा मेरी थां ते मेरी ड्यूटी कर सकता वो मैनूं सब कुछ दे भी सकता। ध्यान देना, उस वेले वस कीता हो खुद अज, बोलै राजा सुनै लुगाई, ते प्रगट करै भगत वडियाई, इउं रब अपने भगतां दी वडियाई नूं प्रगट करदा। हुण दसो कि रब ने शक्ति दिखाई कि नहीं? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ शक्ति ਹੁੰਦੀ नहीं गी, ये किन्ने दिखाई शक्ति? परमेश्वर ने दिखाई। ये प्रभु शक्ति है। प्रभु अज भी शक्ति दिखाता है, पर गल ये है कि भावना की, जिन्ना चਿਰ साडी भावना नहीं उन्ना चਿਰ खेड नहीं बननी। गुरबाणी के विच तुहानूं होर वचन सुणावां, क्योंकि सानूं हुक्म यह है कि बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कह सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। सानूं ये हुक्म है कि बाणी गुरु रूप है तो गुरु बाणी रूप है, तो बाणी दे विच मेरे गुरु ने सारे अमृत भर दिते ने। जो गुरु की बाणी कहती है तो बाणी का जिहड़ा सेवक वो मन लवे, तो प्रतख सतगुरु जी उहनूं उतार देण। हुण बंदे दी मननी कि गुरबाणी दी, ध्यान देइओ। ये नहीं गा कि मेरा किसी नाल कोई वैर है जां कोई मैं ईर्खा वस कह रहा, मेरा किसी नाल कोई वैर नहीं। मैं गुरु का सिख कि गुरमुख का सिद्धांत है कि गुरमुख वैर विरोध गवावे। जिहदे अंदर वैर ईर्खा वो सिख नहीं हो सकता। सिक्खी उत्थे नहीं टिकदी जिथे वैर है। पर सच्चाई को पिछे हटना भी सिक्खी नहीं है। ये नहीं भी आप सच्चाई बोलने वाले आखिए भी ये वैरी है, नहीं, वैरी नहीं। सच्चाई जो गुरबाणी में लिखी वो दसना सिख का फर्ज है। कि कई बार ऐसा भी होंदा, महाराज वचन करते हैं जब सही बोलोगे प्रेम टुट जाता। कि महाराज जी बाणी का वचन है कि टूटै बाहों दुहू दिस गही, टूटै नेहो कि बोलै सही। कहते जी बाह दो पासे किसी ने फड़ी होवे तो टुट जाती, एक उधर खिंची एक उधर खिंचे। जिदा साडा भी सुभाव कईयां का बनया होंदा, एक पासे गुरु को बड़ाई होती, एक पासे कबरां को बड़ाई होती है, टुटूगी। एक पासे बढ़ावांगे तो फिर ही पार लगांगे, दो पासे बाह बढ़ावांगे फिर तो टुटनी है। महाराज की बाणी का वचन टूटै बाहों दुहू दिस गही, जे दो पासे तो बाह खिंचणगे, एक पासे गुरु साहब एक पासे कबर वाला खिंची जाऊगी, फिर तो टुटूगी। ये ध्यान देना। इस करके सिख ने तो बाह एक पासे ही बनानी है, गुरु को बनानी है, होर किसी को नहीं बनाना। तो टूटै नेहो कि बोलै सही, जो सही बोलांगे तो प्रेम भी टुट जाएगा। सही गल किसी के मूँह से कह दो, जिन्ना मर्जी गूढ़ा प्रेम हो मारे कहीं टुट जाऊगा। ये सतगुरां की बाणी का वचन है। चलो भगत नामदेव जी के जीवन में तुहानूं घटना सुनाउणा। 1.5 अंग का शब्द है, मैं अखरी अर्थ करना गुरबाणी की। गुरबाणी के भगत नामदेव जी दी शक्तियों का बड़ा जिक्र आता है, वैसे सब तो वध उन्हां दा जिक्र आता है। कबीर साहब ने भी जीवन में भगतों वास्ते परमेश्वर ने शक्तियां विखाइयां, उन्हां दा जिक्र गुरबाणी में बहुत बार आता है। भगत नामदेव जी का एक शब्द ध्यान दिओ सारे, 1165 अंग के शब्द है। जे किसी ने पढ़ना हो 1165 अंग के श्री गुरु ग्रंथ साहिब शब्द है। भगत नामदेव जी तीर्थ यात्रा पर चले। क्यों चले? वहम ते भरम कढ़न वास्ते। ये ना समझो कि तीर्थां ते इशनान करन चले सी ते नाल ही उन्हें अपना परिवार लिया सी। भगत नामदेव जी विचरदे सन ते नाल उन्हां दा परिवार सी, माँ भी नाल सी ते घर वाली भी नाल सी, परिवार भी नाल ही हुंदा सी। दिल्ली आ गए भगत नामदेव जी, उन्हां दी वडियाई तां हर थां होण लग पई। उदों पहिलां घटनावां वापर चुकीआं सन। एक घटना वापरी सी औंढे शहर में। जो आप सचखंड श्री हजूर साहिब में जाइए तो उतों 200 किलोमीटर दूरी पर उरली दिशा वाल पंजाब वाले पासे में ही सो एक नगर पैंदा औंढा शहर। उत्थे वो मंदिर अज भी खड़ा है जिहड़ा रब ने घुमाया भगत नामदेव जी वास्ते। उहदे मैं दर्शन भी किए हैं। उस तरह घासियां पईयां होईयां। ध्यान देओ, ਉਹਦਾ जिक्र भगत नामदेव जी ने आप किया। हस्त खिलत तेरे देहुरे आया, भगत करत नामा पकड़ उठाया, इंदी जात मेरी जात मराया, शीपे के जन्म काहे को आया, लै कमली चलियो पलटाए, देहुरा पाचा बैठा जाए, ज्यों ज्यों नामा हर गुण उतरै, भगत जना को देहुरा। पंडितां ने जो धक्के मार के कढ़ दिता, भगत नामदेव जी धक्के मार के कढ़ दिता।
भगत नामदेव जी आप लिखते हैं, मोको तू ना विसार, तू ना विसार, तू ना विसारे रामैया। आला वंती एहो भ्रम जो है, मुझ ऊपर सब को मिला। सूद सूद कर मार उठायो, कहाँ करो बाप बीटला। शूदर शूदर नीवी जात का कह के महाराज मैनू धक्के मार के कढ़ दिता है, की करा मैं। कहते ने परमेश्वर ने आख्या नामदेव करना की, तू तो मुक्त हो जाना है, तैनू तो मुक्ति मिल जानी है, मरण तो बाद तू मुक्त। भगत नामदेव जी कहते ऐ रब जी मैनू नहीं मुक्ति चाहिए जी मरण तो बाद मिलती है, मैनू तो होने चाहिए जी जिउंदियां मिल जाए। तो उस वे बचन किया हुए हुए जो मुक्त देहोगे तो मुक्त न जाना कोयला। महाराज मरण तो बाद मुक्ति दोगे किन्ने जानी है, हूँ ये दिखाओ इन्हों कुछ पता लगे कि नामदेव का कि रब कुछ कर सकता है, हूँ ये दिखाओ इन्होंने। फिर कहते हैं जो भगत नामदेव जी ने इं बेनती की कि मरण तो बाद मुक्ति दोगे किन्ने जानी, किन्ने वेखनी, लोगों को थोड़ा पता लगना, मैनू ही गल पता लगू, इन्हों भी पता लगे कि रब की करता। मुए हुए जो मुक्त देोगे तो मुक्त न जाना है कोयला। ये पंडिया मोका ढेर कहत तेरी पैज पिछाउंडी होएला। ये पंडित मैनू मूर्ख कहते हैं, महाराज मेरा कोई नहीं जाता, तुहाडी पैज पिछे पैंदी, मैं तो तुहाडा है, तुहानू ही लांभा जाता है। ते तू जो दयाल कृपाल कहीयत है, आत भुज भयो अपार। तुसी दयालु कृपालु कहे जाते हो, बहुत बाहुबली जाने जाते हो महाराज, कृपा करो। हम कहते जो इं बेनती की भगत नामदेव पिछले पासे बह गया मंदिर के, रब की बंदगी में ये शब्द गाउन लग पाया। तो फिर भगत नामदेव जी आप लिखते हैं, फेर दिया देहरा नामे कहो पंडियन कहो पिछवार ला। कहते नामदेव वास्ते मंदिर घुमा करके मूँह उधर कर दिता, तो पंडितों वाल पिठ कर दी। रोज रह रस भी पढ़ते हैं, हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखता आया राम राजे। हर नाथ दुष्ट हर मारिया प्रहलाद कराया। अहंकारियां निंदका पिठ दे नाम दियो मुख लाया। हंकारियां ते निंदका पिठ दी है, मूँह तो भगत नामदेव वाल किया। ये करामातां प्रसिद्ध हो चुकियां सन भगत नामदेव के प्रथाए। जो दिल्ली आए ना, इतों के जो पंडित से वो भगत नामदेव जी नाल बड़ी ईर्खा करते सी। ईर्खा वो होती जो अपने तो अगे हो, पिछले नाल काहदी ईर्खा, जो अपने तो अगे लंघ जाए ईर्खा वो होनी, दूजे नाल काहदी ईर्खा होनी। सो ईर्खा करते सन कि भगत नामदेव जी की वडियाई क्यों इन्नी होंगी। उत्थे की होया कि उदों राज सी मुगलों का, तो मुगलों का राजा सी मुहम्मद बिन तुगलक, इतिहासकारों ने नाम लिखे, वह नाम से राजे का मुहम्मद बिन तुगलक। कहते उसकी गां मर गई राजे की, पंडितों ने जा करके शिकायत कर दी। कह लगे राजे ने इतने नामदेव फिरदा, बड़िया गल्लां बाबा दी प्रसिद्ध है, कहते ऐं कर दिंदा है, अज परख लो, नाले तुहाडे धर्म दे बड़ा उल्ट बोलदा है। इउं शिकायतां ला दित्तियां भी अज नाले परखिया जाऊगा, नाले तुहाडा कारज सिद्ध हो जाएगा। हुण पंडितां की गिणती जारी सी, नामदेव करा कल्ला। अज भी गिणती को सही मन्निया जाता वा, कल्ला बंदा भावें सही भी होवे, असीं गिणती वाले पासे जांदे हां, कल तो किसी नूं कहिंदे। पर किते इतिहास पढ़ के वेखो, मैं इतिहास पढ़िया तो प्राचीन वहियां अज भी मिलदियां। पुराने जिहड़े काजी हुंदे सी ना, काजी बड़ियां पुराणियां गुरु नानक साहब दे वेले ਦੀਆਂ वहियां, उदों कदे अदालत विच फैसला हुंदा सी ना, वहियां विच लिखिया होया एक पासे एक सिख बयान दे, एक पासे 100 बंदा खड़ा होवे ते काजी कहंदा सी सिख सही है, 100 बंदा गलत है। इन्ना विश्वास गुरु नानक दे सिख ते उदों हुंदा सी। ते अज साडा क्यों नहीं विश्वास किया जाता, अपनी प्रतीत आप ही होवे, बहुर उसका विश्वास ना होवे, आप ही बोलते हैं, किसी ने थोड़ा कोया। सो ध्यान देना गुरु प्यार वाले, भगत नामदेव जी के वारंट जारी हो गए। चलो आप शब्द विचों ही सुनते हैं, स्थार वाल ना लईए। भगत नामदेव जी लिखते हैं कि भगत नामदेव जी फड़ करके ले आना राजे के कोल। वो बचन लिखते हैं, सुल्तान पूछे सुन बे नामा, देखो राम तुम्हारे काम। बादशाह पूछता है कि नामदेव मेरी गल सुन, हुण अज मैं तेरे राम के काम वेखने, मैं सुनिया से तेरा राम आ करदा, तेरा राम आम करदा है, अज मैं तेरे रब के कारज वेखने। नामा सुल्ताने बादला, देखो तेरा हर बीटला।
मैं विस्तार वाल नहीं जाना। नामा सुल्ताने बादला, बादला का अर्थ बन लिया, बादशाह ने नामदेव को बन लिया। देखो तेरा हर बीटला, अज मैं तेरा रब वेखदा की करदा तेरे वास्ते। फिर अगला मतलब क्या, बिस्मल गऊ देहो जीवाए, ए नामदेव आ मरी हुई गऊ जिंदा कर दे। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ 1165 ਅੰਕ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਰਥ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਰਥ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਬਿਸਮਲ ਗਊ ਦੇਹੋ ਜੀਵਾਏ, ਨਾਤਰ ਗਰਦਨ ਮਾਰੋ ਉਠਾਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਊ ਜਿੰਦਾ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਧੌਣ ਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਨਾਤਰ ਗਰਦਨ ਮਾਰੋ ਉਠਾਏ, ਗਰਦਨ ਦਾ ਅਰਥ ਧੌਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਐਸੀ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਬਿਸਮਲ ਕੀਆ ਨਾ ਜੀਵੈ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਐਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਰ ਹੈ ਰਾਮ ਹੋਏ ਹੈ ਸੋਏ। ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੜਿਓ ਅਹੰਕਾਰ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਾ ਗਿਆ। ਅਰਥ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਸੌਖੀ ਅਰਥ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੜਿਓ ਅਹੰਕਾਰ, ਗੱਜ ਹਸਤੀ ਦੀਨੋ ਚਮਕਾਰ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਹੁਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਮੰਨੋ, ਭਾਵੇਂ ਬਚਨ ਸਹੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਵਾ ਦਵਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਐਂ ਕਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੜਿਓ ਅਹੰਕਾਰ, ਗੱਜ ਹਸਤੀ ਦੀਨੋ ਚਮਕਾਰ। ਹੰਕਾਰ ਚੜਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਹਾਥੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਜ ਹਸਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਚਮਕਾਰ, ਹਾਥੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਭੱਜੀ ਆਈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਮਤਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਭਰੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਭੱਜੀ ਆਈ, ਰੁਦਨ ਕਰੈ ਨਾਮੇ ਕੀ ਮਾਏ, ਛੋੜ ਰਾਮ ਕੀ ਨਾ ਭਜੇ ਖੁਦਾਏ। ਰੋਂਦੀ ਉੱਠੀ ਉੱਠੀ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਲਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਭਲਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਮ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਰੱਬ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾ ਆਖੇ ਵੀ ਆਹੀ ਜੰਮਣਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣਾ। ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਛੱਡ ਤੇ ਖੇੜਾ, ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਾ ਆਉ ਤੇਰਾ ਪੂੰਗੜਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਪਿੰਡ ਪੜਿਆ ਮੈਂ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਜੇ ਮਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗਜਿੰਦ ਕਰੈ ਸੁੰਡ ਕੀ ਚੋਟ, ਨਾਮਾ ਉਭਰੈ ਹਰ ਕੀ ਹੋਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਮਾਰਦਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਨਾਮ ਰੱਬ ਦੀ ਓਟ ਸਦਕਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਝਰੀਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਕਰੇ ਸਲਾਮ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮੇਰਾ ਮਲਿਆ ਨਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਜੀ ਤੇ ਮੁਲਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਕਰੇ ਸਲਾਮ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮੇਰਾ ਮਲਿਆ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਸਨ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਨ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮੇਰਾ ਮਲਿਆ ਮਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ,
वो कहने लगे बादशाहो बेनती सुनेहो। मैं नहीं कहता, भगत नामदेव जी अगे लिखते हैं बादशाहो बेनती सुनेहो नामे सर पर सोना ले। उन्होंने सारिया ने आख्या बादशाह साड़ी बेनती सुनो, नामे के बराबर तुसीं तोल के सोना लै लो पर नामदेव को छड्ड दिओ। उन्होंने बेनती की, लिखिया भगत नामदेव बादशाहो बेनती सुनेहो नामे सर पर सोना लेहो। नामदेव के बराबर सोना तोल के लै लो पर भगत नामदेव को छड्ड दो। ते अगों बादशाह की कहता, बादशाह कहता माल लिओ तो दोजक भरो, जे मैं धन लवांगा तो फिर मैं दोजकां नूं जावांगा, नरकां नूं जावांगा। दीन छोड़ दुनिया को भरो, मैं अपना धन छड्ड करके दुनिया के धन नूं अपने घर में पा लवां, ऐसा कदे नहीं हो सकता। बादशाह ने इनकार कर दिता। पावक बेड़ी हाथ ताल, पैरों च बेड़ियां पाइया हुई, हाथों में भी हथ घड़ियां लाइया हुई भगत नामदेव जी। पावक बेड़ी हाथों ताल नामा उतरै गुण गोपाल। कहते भगत नामदेव परमेश्वर के गुण गाउंदा पिया है। अगला वचन की है गंग जमन जो उल्टी बह तो नामा हर करता रहे। कहते गंगा ते जमना उल्टियां हो सकदियां ने, उल्टियां वग सकदियां ने, पर भगत नामदेव परमेश्वर नालों नहीं जुड़ सकते। ये भगत नामदेव जी आप लिखते हैं, कहते गंग जमन जो उल्टी बह तो नामा हर करता रहे। तो नामदेव हर हर करता ही रहेगा, नहीं झुकेगा बादशाह के अगे। कहते ने सात घड़ी जब बीती सुनी अज हो न आयो ते भवन धनी। कहते 7 घड़ियां लंघ गई, अजे रब आया नहीं बचाने वास्ते, परमेश्वर आया नहीं। 7 घड़ी जब बीती सुनी अज हो न आयो तेरे भवन धनी। पाखंतन बाज बजाएगा गरड़ चढ़े गोबिंद आएगा। कहते आ गया मालक, परमेश्वर आ गया भगत नामदेव जी की रक्षा करने वास्ते। अपने भगत पर की प्रतपाल घर चढ़े आए गोपाल। जो कहते वाहिगुरू आ गया, परमेश्वर आ गया, भगत नामदेव के सामने प्रगट होया। तो की कहता रब अगे लिखते हैं भगत नामदेव जी, परमेश्वर कहन लगा नामदेव कहे तो धरन इकोडी करो। भगत नामदेव जी आखे तो धरती पुठी कर दें। हम जेडे कहते शक्ति नहीं होंगी भी रब फिर साडे वाले फुकरियां मार दे। ਜਿਹੜਾ कह रहा है मैं धरती पुठी कर देंगा, ताकत रखता है तो ही कह रहा है ना रब ये गल। कहे तो धर्म कोडी करो, कोडी का अर्थ पुठी टेढ़ी, धर्म का अर्थ धरती। भगत नामदेव को एक बार आख ये आखे तो सारी धरती पुठी कर दें तेरे वास्ते। कहे तो लेकर ऊपर धरो, ये आखे तो लैकर के उत्ते टंग दें तो आसमान के विच। तो तीजा वचन किया सी कहे तो मोई गऊ देहो जीवाए। जे आखे तो मरी हुई गऊ जिंदा कर देवा, सब कोई देखा कि आए, सारे परख के वेख लैन कि भगत नामदेव का रब की करता है। जो ये वचन भगत नामदेव जी को कहे परमेश्वर ने, तो भगत नामदेव जी की कहते हैं, नामदेव जी कहते नामा प्रणवै सेल मसेल गऊ दुहाई बछड़ा मेल। हे रब जी इन्ना कुछ क्यों करना है, क्योंकि भगतों के हिरदे में वैर नहीं होंगे। आखिर महाराज जी तुम धरती पुठी कर सकते, इन्ना माल थोड़े को उत्ते टंग सकते जो, सब कुछ कर सकते हैं, फिर तुम गऊ जिंदा कर दो तो नाले बादशाह की जी पुठी मत सीधी कर दो। धरती पुठी करने नालों तो चंगा यदि बाकी सीधी कर दो, चंगे काम कर लगता। देखो अंदर वैर नहीं है। नामा ब्रह्म सेल मसेल गऊ दुहाई बछड़ा मेल। कहते भी गऊ नूं बछड़े ना मेल दो, भा बछड़े नूं गऊ ना मेल दो, बेचारा तरसदा पिया है अपनी मां तो बिना। कहते ने जदों ये बेनती की तो परमेश्वर ने फिर गऊ जिंदा की। भगत नामदेव जी अगे लिखते हैं दूध है दुहे जब मटकी भरी। कहते फिर गऊ को चो करके जो मटकी भरी, हम मरी हुई गऊ थोड़ा चोई थी, चोई थी तो जिंदा ही गऊ मर। ये तो स्पष्ट हो गया, मरी हुई गऊ ने तो दंदू देना नहीं। दूध है दुहे जो जब मटकी भरी ले बादशाह के आगे धरी। ये गुरबाणी के शब्द ने कि दुध चो करके जो मटकी भरी ये दुध की तो बादशाह के अगे रखी है। बादशाह शर्मिंदा होया, बादशाह महल मह जाए आओ घट की घट लागी आए। कहते बादशाह शर्मिंदा हो के महिला च गया, जो महिला में गया तो वो अंदर पीड़ उठी तो उल्ट के धरती से गिर गया। परमेश्वर ने कौतक बरता दिता, आओ घट की घट लागी आए।
औखी दर्द जिहड़ी है हिरदे विच आ पैदा होई। फिर उत्थों ही अरदासां करन लगा कि मालक ने कृपा की। फिर चल करके आया ते काजियां ते मुलाणियां नूं इहने बेनती करके भेजिया। काजी मुल्ला बिनती फरमाए बख्शी हिंदू मैं तेरी गाए। उस वेले काजियां नूं भेजिया कि मेरे वालों बेनती करो कि असीं तेरी गां भी छड्डी, भावें जिंदा कर भावें ना छड्ड कर, तू जा सानूं बख्श दे। पर भगत नामदेव जी कहते हुण जाना नहीं। फिर की कहते नामदेव जी अगों, ये 1.5 अंग का शब्द वड्डा है तां करके थोड़ियां पंक्तियां रह गईयां 5-7 तुहानूं सुनाई देवां। नामा कहे सुनो बादशाह। फिर भगत नामदेव जी कहन लगे बादशाह मेरी गल सुन, यह पतिया मुझ किश मुझा दिखाए, यह पतिया मुझ किशा दिखाए। ये जिहड़ा तू पतिया ये परख जिहड़ी तू मैनूं करके कुछ दिखाई, यह पतिया किश मुझा दिखाए। यह पतिया का यह परवान सात सील चल सुल्तान। ये जो तू मैनूं परखिया है, मेरे रब को बुलाया है सारिਆਂ ਦੇ सामने, तो जे तू इन्ना कुछ कीता है तो फिर हुण मेरा वचन मन अगे वास्ते चंगे कर्म कर, चंगा सुभाव धारण कर, सच ते चलना कर। सात सील चल सुल्तान, सच ते चल, सील सुभाव रख, सारिਆਂ ਦਾ भला कर। इं वचन कहे ने भगत नामदेव जी ने। नामदेव सब रहया समाए, मिल हिंदू सब नामे कह जाए। इन्हें नामदेव सारिਆਂ ਵਿੱਚ समाया होया। सारे हिंदू इकट्ठे होकर के नामदेव के कोल गए। नामदेव की कीरत रही संसार, भगत जना ने उतरिया पार। कहते भगत नामदेव जी सारे पासे कीर्ति होने लग पई। भगतां नूं नाल लैकर के पार उतर गया। जो अब की बार न जीवै जाए तो नामदेव का पतिया जाए। ये रब जी जी इस बार गऊ ना जिंदा हुई तो भगत नामदेव जी की वडियाई भी खत्म हो जानी है, तो तुहाडे तो भरोसा उठ जाना है। सारिਆਂ ने मनना नहीं। मुड़ के कहते ने सगल निंदक भया खेद, सगल कलेश निंदक भया खेद, नामे नारायण नाही भेद। जिन्ने निंदक सी उन्हां दे अंदर दुख पैदा होया, तो भगत नामदेव विच रब विच कोई फर्क नहीं। ये शब्द दसदा ना, ये मैं एक ही सुनाया अज। ये शब्द सिद्ध करता है कि रब ने शक्ति दिखाई आ करके। सो एक वचन कह के मैं समाप्ति करा हूँ। गुरु शक्ति, ये मैं बहुता समा लेना। एक घटना गुरु नानक देव जी के जीवन में सुना के समाप्ति कर देना। एकाग्रता बनाओ। हुण गुरु शक्ति ते आ गई, प्रभु शक्ति ते आपां क्लीयर हो गई। प्रभु ने शक्ति दिखाई। ते दूजा हुण गुरु ते किंतु कीता जांदा भी गुरु ज्ञान शक्ति नहीं कोई लिखिया जाता है, बड़ा कुछ लिखिया जाता है। आ पिछे जे बोलिया भी गया कहते कि गुरु नूं भोग लवाउणा जिहड़ी ये मूर्ति पूजा है, ये भी किया गया। ते अज शब्द भी बदलिया गया। असीं कहने प्रवान हो गए शब्द वरते, क्यों साडे अंदरों विश्वास खत्म हो गया। मैनू 2-2.5 साल हो गए मैं विदेश गया। ऐतवार का दिन से मैनू याद है, गुरु नानक साहब के गुरब से उत्थे भी मनाया सी, तो मैनू बुलाया सी। तो उत्थे भी एक बंदे ने सवाल किया, कहते भी ज्ञानी जी तुसीं कहते भी गुरु ग्रंथ साहिब नूं भोग लगता कड़ाह प्रशादी देग दा, ते सानूं दिखाओगे भी गुरु ग्रंथ साहिब का मूँह कित्थे। देखो सवाल किहो जिहा, सवाल करने वाले ने कर देना। तो मेरा सुभाव है कि मैं काला नहीं पैंदा हुंदा जो सवाल आवे। जो काले पवांगे फिर गलत बोलिया जाता है। सवाल जवाब धीरज नाल करते हैं। मैं क्या भी गुरमुखा होर कोई गल, कहते नहीं जी होर तो कोई नहीं, बस इन्ना ही पूछना सी। मैं क्या भी तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब अगे अरदास करदे? कहते जी हाँ जी जरूर करते हैं। मैं क्या भी गुरु ग्रंथ साहिब साडी अरदास सुनते? कहते जी हाँ जरूर सुनते सुनते तो तां ही करते। मैं क्या वेख लो बाद में मुकर मन जाओ कि नहीं जी ज्ञानी जी जरूर सुनते हैं। असीं रोज़ अरदास गुरु ग्रंथ साहिब अगे सवेरे शाम करते, सुनते तो तां करते। मैं क्या भी गुरु प्यारो मैनूं विखाओ कि गुरु ग्रंथ साहिब के कन्न कित्थे हैं? वो फिर मेरे मूँह वाल वेखे, कहते भी वो तो पता नहीं गा। मैं क्या भी कन्ना तो बिना गुरु ग्रंथ साहिब सुन लेंगे? कहते हाँ। तो मैं मूँह तो बिना खा नहीं सकता। सवाल तो सानू भी आता है, वड्डी गल नहीं। गल तो भावना की है ना गुरमुखो, जे वो कन्ना तो बिना साडी अरदास सुन सकता है तो गुरमुखो मुख तो बिना छक नहीं सकता।
ये सानू भुलेखिਆਂ 'ਚ पाया जा रहा, समझण की लोड़ है गुरमुखो। ये कोई टिक मार्क नहीं, ना किसी ते तर्क है, मैं सिद्धांत तुहानू दस रहा। सो गुरु प्यार वालियो, ये सानू हौली हौली गुरु ग्रंथ साहिब नूं एक किताब साबित कर देना ना लोगों ने कि गुरु ग्रंथ साहिब अरदास भी नहीं सुनते, मुड़ के कहना जो आप गल्लां मन्नी गए हौली हौली उन्हें मनाई जानी। सो ध्यान देना, गुरु ग्रंथ साहिब दसां पातशाहियां दा स्वरूप है, जग की जोत है। तो तुसीं कभी सुनिया कि किसी ज्ञान ने किसी की अरदास सुनी होवे? हुण जिहड़े साडे विद्वान कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब ज्ञान आके, हुण ज्ञान तो बाइबल में भी है, थोड़ा ज्ञान बाइबल में, चार वेदां में भी, गीता में भी, रामायण में भी है। सो इस्लाम के जिहड़े कुरान शरीफ है, तौरीत है, जबूर है, अंजील है, उन्होंने भी ज्ञान है। पर तुसीं कभी किसी को सुनिया भी किसी ने गीता अगे अरदास की हो? तुसीं कभी किसी ईसाई को वेख्या कि बाइबल अगे अरदास करता? सुनिया कि वेख्या दस दो। या किसी हिंदू वीर को वेख्या कि चार वेदां अगे अरदास करता हो? ध्यान दो, हुण आपां ते अरदास करते हैं गुरु ग्रंथ साहिब, फिर कल नूं की आखांगे भी ज्ञान अरदास नहीं सुन सकता? ज्ञान तो नहीं सुन सकता, मैं तो कहना दावे नाल ज्ञान अरदास नहीं सुन सकता, पर दसां पातशाहियां दी आत्मिक जोत धन गुरु ग्रंथ साहिब सुन सकते, कला ज्ञान नहीं सुन सकता। गुरु सुन सकता अरदास। तो जे आपां इहनूं ज्ञान सिद्ध करांगे भी ज्ञान नूं मत्था टेकण की लोड़ नहीं, कोई वेदां नूं मत्था नहीं टेकदा, ना ही बाइबल नूं मत्था टेकदा, ना ही फिर ज्ञान के उत्ते चंदवा लाउण की लोड़ है, ना ही ज्ञान के उत्ते चौर सर करने की लोड़, फिर सारा कुछ खत्म हो जाए। ये ध्यान देना, ये सानू सुनने की लोड़ है, सचेत होने की लोड़ है, तो असीं समझांगे। रहो विचार मैं इस विषय वल ना जावां, मुक्त की गल वल आवां, गुरु शक्ति की गल कर लगा सी। धन गुरु नानक साहब ने शक्ति विखाई है कि जां नहीं विखाई, ये ध्यान देना। हुण आपां नूं कहा जांदा भी शक्ति तो है ही नहीं गुरु नानक के घर में, सारिया चीज़ों का खंडन किया जाए। एको घटना कह के मैं समाप्ति कर लगा। धन गुरु नानक साहब जी ने चार उदासियां कीतियां ने, चार दिशावां दे विच विचर करके पातशाह जी ने भुल्ले भटके लोगों को प्रभु के लड़ लाया। फिर कितने समा बनया तुहानूं गुरु नानक साहब का जीवन सुनावांगा, तुहानूं पता लगेगा कि किसी किसी शक्तियां दिखाइयां तो किवें दिखाइयां। सतगुरु नानक साहब मक्के भी गए, मदीने भी गए, बगदाद की धरती इराक दे विच सतगुरु पातशाह गए। जो महाराज बगदाद गए तो भाई साहब भाई गुरदास जी लिखते हैं, मैं अपने को कभी वजन नहीं किया, मैं प्रमाण तो बिना गल नहीं करता, या गुरु ग्रंथ साहिब का प्रमाण या भाई गुरदास जी का प्रमाण। क्यों? रहत मर्यादा में ये बदल लिखा हुआ है, जिथे गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी का कीर्तन हो सकता, उत्थे भाई गुरदास जी की बाणी का बराबर से कीर्तन हो सकता। तो सचखंड श्री हरिमंदर साहिब होंदा भी है, भाई गुरदास जी के ऊपर कोई किंतु नहीं कर सकता, पर जे कोई करता है फिर हाथ जोड़ दिया करो, भाई तू परा रह, जो भाई साहब से किंतु करी जाता, जिन्होंने महाराज ने क्या भी बराबर से कीर्तन हो सकता, उसकी लोड़ ही नहीं गल सुननी। भाई गुरदास जी लिखते हैं, फिर बाबा गया बगदाद नूं, बाहर जाए किया अस्थाना, एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मरदाना। कहते बाबा नानक गया बगदाद की धरती ते बाहर बार आसन लाया, एक बाबा अकाल रूप, एक अकाल पुरख का स्वरूप धन गुरु नानक साहब। असीं तो मनते नहीं, भाई गुरदास लिखते कि बाबा नानक अकाल रूप है। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी भी कहती है, जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी में लिखा है कि ज्योति स्वरूप वाहिगुरु आप है, उसे ने गुरु नानक कहाया। एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मरदाना। हुण इत्थे भी आकर के लफड़ पाया जाता है, कहते जी इत्थे मरदाने का जिक्र किया, बाले का नहीं किया, इस करके बाला है ही नहीं। गल नहीं, कमाल की गल। हुण भाई बाला जी ते भाई मरदाना जी सतगुरां दे नाल रहिंदे सन, परिवार वाले सन दोवें। उन्होंने कितने छुट्टी भी लैनी पैंदी सी, थोड़ा भी पक्के ही कभी छुट्टी नहीं लेंदे। कई बार भाई मरदाना की छुट्टी लैके आ जाते सन, कई बार गुरु प्यार वाले भाई बाला की छुट्टी लैके आ जाते हैं। जो बगदाद गए उदों भाई बाला अपने पिंड आए स। मैं एक बार पूछ लिया कि बाला क्यों, तुसीं कहते भी बाला नहीं होया। मैंने एक गुरमुख ने गल दसी, कहते ज्ञानी जी गल बाले की नहीं, गल होर। मैं कहा होर की? कहते बाले ने लिखी है जन्म साखी गुरु नानक साहब। ये कहते बाला खत्म कर दो तो जन्म साखी आपे खत्म हो।
गल तो जन्म साखी को खत्म करनी है, बाले को नहीं गई। सीधा जन्म साखी को नहीं कहते, गलत है भी खत्म कर दो। उन्होंने पता भी विरोध होगा जी असं सीधा कहांगे कि जन्म साखी है ही नहीं गुरु नानक साहब जी। उन्होंने पता भी लिखण वाले भी खत्म कर दो तो साखी आपे खत्म ढंग नाल ये समझण की लोड़ है। तो जे किसी को अजे भी शक होवे, भाई गुरदास जी की 11वीं वार पढ़ लो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गुरु नानक के सिखां का जिक्र आता है। तारू पोपट जाणीए बाला बाल सिखाई मित्र हमारा, उत्थे पढ़ लो लिखिया होया। मारे कहते साडा मित्र भाई बाला बचपन का प्रमाण नाल कर उदा नहीं, हवा च तीर नहीं चलाने। भाई गुरदास जी लिखते, एक बाबा अकाल रूप दूजा रबाबी मरदाना, दित्ती बांग नमाज कर सुन समान हुआ जहाना, सुन मुन नगरी भई देख पीर भया हैराना। जो गुरु नानक साहब ने उत्थे कीर्तन किया तो सुन मुन नगरी हो गई। सुन मुन का अर्थ की होंदा, अपने आप का चेता भुल जाना, कामां कारां का चेता भुल जाना, सुरत शब्द में जुड़ जाना। आप जो टीका लाया हो सुन करना तो आपको पता ही नहीं होता अपने शरीर नाल की हो रहा, सुन हो गया, कुछ नहीं पता कि की हो रहा। इस तरह की अवस्था बन जानी, टकाव आ गया। गुरु नानक साहब ने उत्थे कीर्तन केड़ा कीता, भाई गुरदास जी लिखते हैं उत्थे कीर्तन किया है, पाताला पाताल नख आगासा आगास, ओढ़ ओढ़ भाल तके वेद कहन एक बात, सहस 18 कहन कतेबा असलू एक धात, लेखा होए तो लिखिया लेखा होए मडास, नानक वड्डा आखिए आपे जाना आप। जपजी साहब की इस पौड़ी का कीर्तन महाराज ने उत्थे कीता। वो भाई गुरदास जी पौड़ी में अगे आ गए, वही मैं कह के समाप्ति करदा। सो गुरु प्यार वालिओ, सुन मुन नगरी भई देख पीर भया हैराना। उत्थे एक पीर सी, उस पीर का नाम विद्वाना ने लिखा बहलोल शाह, पर वह तखल्लस सी दस्तगीर। 27वां पीर सी। उस गद्दी ते जिहड़ा पीर बहिंदा सी ना, ਉਹਦਾ नाम पै जाता सी दस्तगीर। दस्तगीर शब्द जिहड़ा ये फारसी का, ਇਹਦਾ अर्थ दस्त का अर्थ ਹੁੰਦਾ हथ, ਤੇ ਗੀਰ ਦਾ अर्थ पकड़न वाला, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਤਖੱਲਸ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਨ ਪਿਸਰ ਪਦਰ ਬਿਰਾਦਰਾ ਕਸ ਨੇਸ ਦਸਤੰਗੀਰ। ਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸਤਰੀ, ਪਦਰ ਦਾ ਅਰਥ ਪਿਤਾ, ਪਿਸਰ ਦਾ ਅਰਥ ਪੁੱਤਰ, ਬਰਾਦਰਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਭਰਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਚੰਦ ਹੁਣ ਉਹ ਦਸਤਗੀਰ 27ਵਾਂ ਪੀਰ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬਹਿਲੋਲ ਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਤਖੱਲਸ ਦਸਤਗੀਰ ਸੀ। ਉਹ ਪੀਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਟਿਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਿਕਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਟਿਕਾ ਬਣੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੱਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਸ ਨਾ ਬਣੇ, ਤੇ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚੰਦ ਸੁਨ ਮੁਨ ਨਗਰੀ ਭਈ ਦੇਖ ਪੀਰ ਭਇਆ हैराना, देखा ध्यान लगाए कर एक फकीर वड्डा मस्ताना। उन्हें ध्यान लगा के देखा भी कौन है, देखा तो वड्डा मस्ताना रब का प्यारा कोई फकीर आया है। तो पूछया फिर कह दस्तगीर कौन फकीर किसका घराना। कहते अपने चेलियां पूछया दस्तगीर ने भी कौन फकीर है, किहड़े घराने का फकीर है। तो चेलियां ने आख्या असीं तां सुन के आए हैं कि नानक कल विच आया रब फकीर इक्को पहचाना, धरत आकाश जाना। भाई गुरदास जी लिखते हैं कि चेले कह लगे कि असीं सुनिया कलयुग के अंदर नानक आया है और उस फकीर को लोगों ने रब करके जाना, सारे तो उसकी वडियाई। वो चेले कह लगे महाराज ये तो बड़ा काम औखा हो गया, असीं तो उसका कीर्तन भी सुन के आए हैं। वो तो कह रहा लखा आकाश ने लखा पताल ने, तुसीं तो सानूं अजे तक 14 ही दसे कि 14 ने, 7 आकाश ने 7 पताल ने, इस्लाम बनता था। तो आख्या ये बगदाद गढ़ है मुसलमानों का, कि इत्थे कोई बाहरों आके कुफर तोल रहा तो बाहर इस्लाम का प्रचार कितों होगा। कहते हैं फकीर को बड़ा गुस्सा चढ़िया, उन्हें लोगों को आख्या, क्योंकि वो उतों का मालक सी, लोग वो आखे लगते से, लोगों को आख्या लो पत्थर रोड़े ईटा तो मारो उस कढ़ दो। लोग रोड़े ईटा लैके गुरु नानक को मारने वास्ते आए। भाई मरदाना कह लगे महाराज आ रहे जी हुण की बनूगा। महाराज कहते मरदाना वेख रंग करतार दे भैना कर वो हुक्म में सब कुछ होना। जदों नेड़े आए ने कहते ईटा रोड़े मारन वास्ते हाथ ऊपर चुके ने, मेरे पातशाह ने ऊपर निगाह की थी, उत्थे ही हाथ खड़े रह गए।
फिर कहते ने पीर ने अपना जोर लाया, अपनी शक्ति वरती, जो ना कुछ जोर चलिया तो सतगुरां की चरनी आ के पिया वो दस्तगीर पीर। तो चरनी जो पिया तो उस वेले कह लगा महाराज कृपा करो इन्हों बख्शो। वो कहण से महाराज ने उन्होंने लोगों को फिर ठीक किया। फिर उस फकीर ने सतगुरां को कुछ सवाल जवाब किए ने, वो तुहाडे सम्मुख रखने ने। उस वेले फकीर ने आख्या, भाई गुरदास जी लिखते हैं, पुछे पीर तकरार कर यह फकीर वड्डा अकाई, इत्थे विच बगदाद ते वड्डी करामात दिखलाई। तुसीं इत्थे बड़ी वड्डी करामात दिखला दित्ती है। कि पाताला आकाश लख कूड़ भाली खबर सुनाई। तुसीं कहंदे लखां आकाश ने लखां पताल ने, साडे इस्लाम दे विच तां 14 की गल है, तुसीं लखां कही जा रहे। पुछया फिर क्या दस्तगीर कि असी ये वेखा जो तुहें पाई। कहन लगा महाराज असी किवें मन लईए, जे तुसीं लखां की गल करदे जां तां सानूं कुछ दिखाओ। महाराज कहंदे पीर जी असी जो कहने असीं दिखा सकदे, केवल गल्लां नहीं करदे। चल साडे नाल, असीं तैनूं दिखा दिंदे। कहन लगा महाराज मैं तां बुढ़ा हो गया, बजुर्ग आ मेरा बेटा लै जाओ, मैनूं इहदे ते यकीन है, मैं बहुता समा नहीं लैना, 4-5 मिनट में समाप्ति कर देनी, एकाग्रता बनाओ। सो महाराज कहन लगे चल अपने बेटे को भेज दे, जे तू बेटे को भेजना। भाई गुरदास जी लिखते हैं नाल लीता बेटा पीर का, हुण ध्यान दे, नाल लीता बेटा पीर का अखी मीट गया हवाई। कहते नाल लिया बेटा पीर का, अखां बंद कीतियां ते महाराज चले गए। हुण इहनूं की कहो, शक्ति नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं तो अर्थ कर रहा, तुहानूं दस रहा जो गुरु भाई साहब ने लिखिया। अखी मीट गया हवाई, अखां बंद कीतियां ते गए। कि लख आकाश पाताल लख अख फुरक विच सब दिखलाई। भाई गुरदास जी कहते लखां आकाश ते लखां पताल अख झमकण के समय में गुरु नानक साहब ने दिखाए। हुण कोई दिखा सकता? जिहड़े कहते ज्ञान नाल सब कुछ, ज्ञान नाल मैनूं एक आकाश दिखा दो। आपां कहने आकाश उत्ते वेख्या तो नहीं जाता, आपां कहने पताल थल्ले किसी ने वेख्या? अपने देखो ज्ञान नाल वेख सकदा, ज्ञान नाल दस्सिया जा सकदा थल्ले पताल हैगा, वेख्या तो नहीं जा सकता। महाराज ने लिखाए है अख झमकण के समय में लखां आकाश ते लखां पताल दिखाता। मैं नहीं कह रहा, भाई गुरदास जी कह रहे हैं लख आकाश पाताल लख अख फुरक विच सब दिखलाया। अख झमकण के समय में सारे दिखा दिते। फिर भाई साहब जी अगे बढ़ लिखते हैं भर के चकौल प्रसाद का धुरों पतालों मई कड़ाही। भाई साहब कहते जिथे महाराज जाते थे उत्थे गुरु नानक साहब की संगत सी, उत्थे कड़ाह प्रसाद की देग तैयार होती सी। एक कच्चा भांडा कच्चा कौला मिट्टी का नाम लैके गए थे, उन्होंने चकौल कहते, भर के चकौल प्रसाद का निशानी वास्ते एक किनका देग का लै लेंदे सन, ताकि अपने अब्बा जान मैं जाके दिखावा भी आवे मैं लैके आया। कहते वो कच्चा कौला जो मिट्टी का सी भर गया प्रसाद का किनके किनके दे नाल। धुरों पतालों लई कड़ाही, पतालों जो लई वो कड़ाही कड़ाह प्रसाद जाहर कला न छपा छपाई। कहते ने फिर तरले मारे पीर का बेटा, कह लगा महाराज बस देख ले हुण कोई शक नहीं रह गया, पीछे चलो। महाराज नाल लैके वापस आए। उस वेले पीर के बेटे ने हाथ जोड़े तो कह लगा अब्बा जान ये जो कुछ कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं। लखां आकाश ते लखां पतालों की इन्हां गल की है, मैं तो बेनती करके वापस आया तो अजे भी अगे तुरे जा रहे थे। ध्यान दो हुण ये शक्ति नहीं दिखी, गुरु शक्ति है। अजे तो मैं गुरु नानक साहब की कली दसी है, 10 पातशाहियों के जीवन के घटनावां लिखती रूप में मिलदियां। सो आखिरी बचन कह के समाप्ति करा। फिर उत्थे पीर ने 3 सवाल किए, मैं कह के समाप्ति कर लगा। 3 सवाल विद्वानों की लिखत मुताबक धन गुरु नानक साहब बगदाद की धरती 17 दिन रहे हैं। जो महाराज तुरन लगते सी तो पीर अगे हथ जुड़ के खलो जाता सी, महाराज नहीं अजे ना जाया कृपा करो। फिर प्यार ही इन्ना पै गया सी गुरु साहब का। 3 सवाल किए। एक सवाल किया कि रब तो पहला की सी, पहला सवाल ये। दूजा सवाल किया जे रब हैगा तो दिसदा क्यों नहीं? सवाल बड़े बड़े ने। तीजा सवाल सी रब करता की? बस इन्हों के आप आंसर लैके गुरु साहब को समाप्ति करते हैं।
सतगुरु नानक देव पातशाह कहने लगे कोई गल नहीं, दसो तुहाडा पहला सवाल की है। फकीर कहने लगा मेरा पहला सवाल है रब तो पहला की सी। महाराज कहते पीर जी तुहाडे कोल मोती है मोहरा है? कहने लगे जी है। महाराज कहते फिर मोहरा मंगाओ। पीर सोचता कि मैं तो सुनिया से बड़े प्यार वैरागी त्यागी है तो लालची लगता है, मोहरा मंगाई जाता। मोहरा मंगा ली। सतगुरु पातशाह कहने लगे मेरे सामने गिनो। हुण मोहरा गिन लगा पीर 1 2 3 4 5 6। महाराज ने बाहों फड़ लिया, नहीं गिनती गलत, पीर जी दोबारा गिन। पीर बड़ा हैरान, फिर गिन लगा 1 2 3 4 5 6 7 8। महाराज फिर बाहों फड़ लिया, नहीं गिनती गलत, दोबारा गिन। कहने लगा महाराज गिनती इत्थों शुरू होती है, गलत क्यों है? महाराज ज्यादा जिथों मेरी गलती है उथों फड़ो। हुण तीजी बार गिन लगा जी, कहन लगा महाराज उथों फड़ लिया, कहते इत्थे गलती है। कहने लगा महाराज जी इत्थे काहदी गलती है? महाराज कहते तू 1 तो शुरू करता, तू ये दस 1 तो पहला की सी? कहने लगा जी 1 तो पहला तो कख भी नहीं सी। महाराज कहते रब तो पहला भी कख नहीं सी। करके आखो सतनाम। एक सवाल का हल हो गया। फिर दूजा पूछा, कहने लगा महाराज जे रब हैगा तो दिसदा क्यों? महाराज कहने लगे पीर जी दुध लियाओगे 1 कटोरा? कहने लगे जरूर। दुध मंगाया गया। पीर ने सोचा कि इन्हूं कई दिन हो गए हैं तो इन्हां दी सेवा तो किसी ने की नहीं, भुख लगी होगी तो इन्हां ने दुध छकना हो गया। लिया कर कटोरा दुध सतगुरां दे अगे लिया रखिया। आ लो महाराज। महाराज कहने लगे पीर जी इस दुध में कुछ हैगा है? कहने लगा नहीं महाराज ये कुछ नहीं, कला दुध ही तुहाडे वास्ते लिआंदा है, होर तां कुछ नहीं ये पाया। महाराज कहते नहीं दुध में कुछ हैगा है। कहने लगा नहीं महाराज चेलियां नूं पुछिया कि तुसीं कुछ विच पाया तो नहीं? कहने लगे नहीं जी असीं ते कला दुध ही लैके आए। फिर तीजी बार महाराज कहते नहीं पीर जी दे विच कुछ हैगा। पीर कहने लगा महाराज ये असीं तो कुछ नहीं पाया, जे कुछ हैगा तो तुसीं दस दो। महाराज कहते पीर जी ये मक्खन है घ्यो। पीर हस के कहने लगा महाराज वो तो हैगा ही है, वो तो पता ही है। महाराज कहते सानूं कढ के विखा। कहता महाराज जी इदां थोड़ा कढ़िया जाना, ਉਹਦੇ वास्ते कुछ करना पऊगा, दुध काढ़ना पऊगा, फिर उन्हें जाग लाउणी पऊगी, फिर उन्हें जमाउणा पऊगा, फिर उहदे मधाणी पाउणी पऊगी, फिर उहदे विचों मक्खण निकलेगा, फिर मक्खण नूं काढ़ना पवेगा, फिर उहदे विचों जाके घ्यो निकलेगा। महाराज कहते रब फिर सौखा ही मिल जाता। अब घ्यो कढ़न वास्ते इन्ना कुछ करना पिया। रब है इसे तरह रब भी है, जिवें दुध विच घ्यो है दिसदा नहीं पर हैगा तो जरूर मनते हैं तो मेहनत नाल निकलदा भी है। इस तरह रब भी है पर वो दिसदा उन्होंने है जिहड़ा इस तरह मेहनत करेगा, बंदगी करेगा। हुण तसल्ली हो गई। हुण तीजा सवाल आखिरी कि रब करदा की है? महाराज कहने लगे पीर जी मैनूं पहलां ये दसो कि तुसीं सिंघासन ते बैठे, मैं बैठा थले तो मैं तुहाडे सवालों के जवाब दे रहा, तुहाडी मेरे ते भावना की है? कहने लगा महाराज तुसीं मेरे गुरु जी, मैं तुहाडा सेवक हाँ, क्योंकि गुरु शंके निवृत्त करता तो सेवक सवाल करता। महाराज कहने लगे भी सेवक सिंघासन से बैठा हो तो गुरु थले बैठा हो, गल चंगी थोड़ी। हुण पीर का हिरदा पवित्र हो चुका सी, गुरु का भय मन में आ चुका सी। उस वेले उन्होंने अपनी गलती का एहसास होया, झट सिंघासन तो थले उतरिया। महाराज ने बेनती की महाराज तुसीं उपर बैठे। महाराज उपर बैठ गए सिंघासन दे। कहने लगा महाराज हुण दसो रब करदा की? महाराज कहते अजे भी तुहानूं समझ नहीं आई, सवाल का जवाब तो तैनूं मिल गया। कहने लगा नहीं महाराज। महाराज कहते रब यही कुछ करता, तेरे वर्गिਆਂ ਨੂੰ सिंघासन तो थले ला दिंदा है, मेरे वर्गिਆਂ ਨੂੰ सिंघासन के उपर बिठा। सो एवें नहीं गुरु नानक साहब जी बारे गुरु अर्जन साहब लिख के गए कि सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। ये तां नहीं लिख दिता भी साडे गल लिख दिता है, उन्हां दी वड्डियाईयां ने
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਸ਼ਰਦਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਭਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿਖਾਈ ਸ਼ਕਤੀ, ਹੋਰ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿਖਾਉਣੀ। ਮੂਰਖ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਖਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਬਸ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੰਪੰਨ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਰੂਪ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਦਸੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਂ ਕਿੰਤੂ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ, ਗੁਣ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਆਨੰਦ